Good evening, everyone, and welcome to the another episode of Expert Chat. And today we will be discussing about the creative careers in architecture and design. As we know that it is a very creative, very highly competitive and demanding, but yet the people who are passionate about it, it is a wonderful career that has a great career scope, and it has a very wide option, as we all are not aware of. We normally connect design with fashion designing only, and maybe accessory design, or extend it to leather design or something. But designing is a very wide vast career. Definitely, we have with us experts who will be talking about in details. Before that, I like to introduce Sunanda. She'll be in conversation with our expert today, Ms. Sangeeta Sharma. Sunanda, she is a founder with a concept. She is a managing editor for the Career Weekend magazine, and she's the convener of National Career Counselors Network. And she is also a regular columnist, career expert in Amar Ujala, and she is writing regular columns and helping youth to and empowering youth to reach their maximum potential. So with that, I'd like to invite Sunanda to take today's session and take this forward with our expert, Ms. Sangeeta Sharma. Thank you so much, Kavita, for taking this, exhaustive introduction. Also, as you have mentioned, yes, we are in the 6th episode today, wherein the NCC and Expert Chat is an initiative of National Career Counselors Network. And I'm glad that both of us are planning and executing this series in a manner, whichever question or the career questions that we are receiving in our regular chat boxes. Well, just to inform you, as we know that there are a number of careers, and design and architecture. These are two careers which are, there from the ancient times, and they are making a change with the help of the technology. So no matter how old is our heritage, architects are the people who protect it or give a new shape to it. If you ever visit to any of the country, obviously the first checklist that you will have is what all places you would like to look. Like anyone who visits Paris, they would like to go and visit the the tower. Then in case if someone is going to Hyderabad, they would like to see the Charminar. If someone is coming to Delhi, they would like to go for Birla Temple, or say the Lotus Temple. So these are the things. And do you know why people go to those places? Because of the architecture of those places. Uh, we are proud that one of the seventh wonder of the world, Taj Mahal, is in our country. So Agra being a destination, that is because architects have given a design. And believe me, that was way back in old centuries. That people without any laptop, any AutoCAD or any measuring thing, they have created such a beautiful monument. Think about Qutub Minar or any other monument that you can talk about. So that itself shows that architecture is one of the emerging career, and that runs the economy of the thing. So as you are sitting today in front of a Facebook live session, and do you know the interface of the live session is actually carried by whom? It is carried by the designers, web designers, then graphic designer. You see anything that would be there where UI UX is there. You wear a designer watch. There is someone who is actually doing that. That is a designer who is product designer who is designing a watch. You're taking a leather wallet or say leather couch, whatever you feel so. That is also designed by the people. So that shows that variety of things or variety of careers are there in the design field. And also I have mentioned something about the architecture, that how a country's economy is going with the architecture. Now, the reason why I was telling the context of the story of the Charminar, or maybe the Qutub Minar, or Burj Khalifa, or maybe the product designers, because today the expert that we have with us is the regional director of BRDS, that is Bhuvar Rathoda's Design Studio, which is one of the
topmost designing institute which prepares students for the NIFT, then NATA and the UC exam, and their hit ratio is so high that people actually, qualify that. And well, not to boost much of them, my son has also taken NATA, preparation thing, and in the first attempt, he could score a good percentage of mark in JWQ. That itself shows the kind of curriculum these people actually prepare and design. Well, we are not talking about BRDS at this moment of time, neither we are endorsing anybody, but yes, we need to have a person who can actually define the careers, what are there in design, what are there in architecture, how can you get into it, what are the subject level, what is the difficulty level of the subject, and to talk to us on all these areas, I would like to invite Ms. Sangeeta Sharma, who is the Regional Director, BRDS from the Delhi NCR, and she is going to have an expert chat with us. So, welcome Sangeeta ji. For your information, Sangeeta has been a part of an education fraternity where she worked in the hospitality. She is a counselor. She is a person who takes care of the PNL, and she ensures that nation gets architects and designers through BRDS. So welcome Sangeeta ji, please set the context for today. Thank you, Sundar ma'am. So I should start telling them the what they should do in design and architecture. I would like you to set the context on design and architecture. What is the field? Because I, being a counselor, we can tell formal things only, which is known or which is there in Google. But you are the person who are having an inside out information. So we would like you to set the context. What is the career in design? What is the career in architecture? And in the due course of time, I'll ask you some questions and you can answer. So I would like to address a few students who actually basically they like drawing. Drawing fascinates them. Fashion design fascinates them, or basically good buildings and these things fascinates them. So for them, design and architecture career is the high. It's high time that they should start planning for this career. So like if they are in 10th, they have passed. Actually, the eligibility criteria for to be taking admissions in the design colleges and the architecture colleges, it's 12th pass only. So when you are pursuing to grade 12 or when you are in grade 11, you can start planning for the preparation. Same way as like we prepare for the engineering when we are in grade 9, 10, we start preparing our exams, entrance exam preparation. We will go and take admission in FITZI, we'll go for Akash and all. So we should plan entrance exam preparation for entrance exam for these colleges also. Reason behind, okay, it's not that these entrances are difficult, but yes, it has a certain pattern that you should know that how you should appear for these entrances. So basically, if you are planning for approaching these careers, what you should have, you should have, your concept should be clear that if you're going to pursue this field, what do you have to have in your hand? So you should just churn yourself, think that what is your natural ability, that you like drawing, you like criticizing some things, you like some appreciating some things. So that is the part of like an artist. If you have that ability, that means you're an artist, and that means you can go for the designing and architecture field. So you just have to have ability to reason the things, to imagine, because what is designing, what is drawing? Designing is the solution of a problem. That is called designing. So anything like कभी किसी ने डिजाइन किया होगा, जैसे अब किसी गॉड फॉरबिड कोई हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, जैसे उनके लिए पहले व्हील चेयर हुआ करती थी जो किसी को पुश करना पड़ता था. अब ऑटोमेटिक व्हील चेयर है. नाउ दे कैन एंटर इनटू, प्रेस द बटन, दे कैन एंटर इनटू द कार itself. So it's, yeah, mechanism is there in that, but somebody has designed according to their comfort level, which body part they are not comfortable in. So that chair has to design in that way, so that it's actually the customers, according to the customer. ऐसा नहीं कि एक कस्टमाइज जनरल वे में कुछ चीज बना दिया. It's actually customized. जैसे आप कोई यदि ईटेबल गुड्स होता है तो एक जनरल बनता है, ठीक है. आपको पार्ले जी बना तो इकोनॉमिकल, जेंट्री के लिए एक पार्ले जी बनेगा तो आप इकोनॉमिकल लेवल के लोग खा सकते हैं. हाई आइडेंसी के इसका प्राइस हाई है तो ये अपर मिडिल क्लास लोग खाते हैं.
बट जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग इज कस्टमाइज्ड. It's the solution of a problem, of any type of problem. The designing is there. Solution for designers can find the solution for it. And then what architecture can do? Architecture can beautify the country, nation, and the state and the city by creating different ideas. पहले जब हम लोग के cities और शहर जो भी होते थे, एक एक लेन में फ्लैट्स बन गए या हाउसेस बन गए या प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया हो गया. आजकल जब आप सिटीज देखते हैं, इफ यू आर इन दिल्ली एंड गुड़गांव, यू कैन सी द गुड़गांव इज प्लान्ड सिटी. If you go see Cyber City, you look, that it was a time when it was called Mini America, when initially it has started. So now the Gurgaon is full of those type of buildings. So who has done this? It's our architect students, those who have read architecture and gone and worked on this. So basically designers and architects can change the world, can change the look of the world, and do wonders in the world, because it's just you can imagine and you can do the changes in the any field. You can do the changes. Very well said, Sangeeta ji. Yes, these are the designers, these are the architecture who have actually are building the nation. In fact, when you gave the example of वो जो wheelchair का ही, मैं आपको एक और example देती हूँ. जैसे for example हम लोग पहले pencil रखते थे या pen रखते थे, ठीक है? A very small tool that we keep. पहले क्या होता था, उनका किस ढंग से उसका मतलब पकड़ जो ये सब चीजें, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं उस पे आपके फ्रेंडली कलर्स आ गए, कुछ जगह पे आपके स्टीक्स आते हैं, कई जगह पे रबर आता है. Who is doing that? That's a product designer. And believe me, who is, they are the people who are managing it. Imagine the kind of telephones that we were having. एक टेलीफोन था जो बड़ा डब्बे सा, अब धीरे धीरे वो स्मार्ट फोन की तरह एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट भी हो गया. So what is happening is, who is doing all these things is designers. So as you have rightly said, aptitude matters and reasoning matters. आपको थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूंगी, आपने बोला रीजनिंग की बहुत जरूरत है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, जैसे टू बी वेरी प्रिसाइज. आप थोड़ा बताओगे कि ये जरूरत क्यों पड़ती है एज अ सब्जेक्ट में? मैं बताती हूँ. सी, आप जब हम लोग रीजनिंग की, यूजुअली हम लोग जो हमारे स्कूल का करिकुलम होता है, थैंक गॉड टू आवर पीएम मोदी नाउ that he is trying to introduce a different curriculum which is going to help our students in future, because but हमारे Indian education में we have seen that we don't encourage reasoning type of learning, because हम एक certain set pattern में ही अभी तक हम education system जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमें reason करना नहीं सिखाया जाता. सिर्फ मैथ्स है, फिजिक्स है, फॉर्मूलाज है, आप पढ़ो और इसको निकलो. पढ़ने के बाद जब आप लाइफ में उतरते हो, एंट्रेंस एग्जाम्स में जाते हो या लाइफ जॉब में जाते हो, जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं, तब आपको बोलते हैं रीजन करो. फिर रीजन कैसे करें? हमें रीजन तो करना कभी सिखाया ही नहीं आप लोगों ने, ना एजुकेशन सिस्टम में सिखाया, ना अपने हमारे घर में जो हमारी एजुकेशन, हमारी घर की जो होती है ब्रिंगिंग, उसमें भी नहीं सिखाया. हर चीज को अगर आप रीजन करोगे, उसे एनालाइज करोगे, तब आप कुछ करोगे, तभी उसका आप सोल्यूशन निकालोगे. बिना सोचे अगर आप कुछ करोगे तो वो सोल्यूशन नहीं आएगा ना उसका. फिर तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे काम कर रहे हो. जब आप रीजन करके कोई चीज करते हो, तो रीजन गिव्स यू द एक्यूरेट सोल्यूशन. रीजन में क्या आता है? रीजन में आपको क्या आता है? अब रीजन तो सिर्फ ऐसे कोई सोचेगा रीजन कैसे करते हैं. तो रीजन में आप, जैसे मैंने आपको रीजनिंग एबिलिटी बताई, उसमें एनालिटिक रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग. तो इफ अगर इस कॉर्नर में ये चीज इस शेप में रखी गई है, ऐसे शेप में, एंगल के शेप में, और इस कॉर्नर में इस एंगल के शेप में होगी, सो विल दिस एंड दिस कॉर्नर विल गिव द गुड लुक. तो आप सोचने पे मजबूर हो गए. दैट सोचना इज कॉल्ड रीजनिंग. यू आर रीजनिंग इट वेदर इट विल लुक नाइस और नॉट. सो ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता और कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए होती है. इसको रीजन करना पड़ता है कि यहाँ पे रख के ये चीज ठीक से दिखेगी कि नहीं. वैसे ही डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में जैसे आप जाते हैं, तो इंटीरियर जब आप कोई करते हैं किसी बिल्डिंग का या किसी चीज का, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल का या किसी भी प्रीमिसेस का आप इंटीरियर करते हैं, तो इंटीरियर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आपको रीजन करना पड़ता है कि यदि ये इतना एरिया है, इस एरिया में रिसेप्शन का एरिया एग्जाम्पल, तो उस पर अगर मैं यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कर दूंगा तो एंट्रेंस से आने के लिए स्पेस बचेगा. अगर समझ लो ये एक हॉस्पिटल का है रिसेप्शन एरिया, अगर हमने एंट्रेंस में ही घुसते साथ सिटिंग एरिया कर दिया, तो क्या पेशेंट जब अंदर आएंगे तो उनको ले जाने के लिए स्पेस होगा अंदर?
स्पेस मैनेजमेंट, उसको भी रीजन करना है। इसमें कुछ बहुत मैथ्स और वो चीज नहीं चाहिए होती, बहुत फिजिक्स या मैथ्स, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें फिजिक्स की मैकेनिज्म चाहिए, बट रीजन करने के लिए चाहिए। दैट इज व्हाई these artists and these designers and architects, they should have the reasoning ability, and reasoning ability पे काम करना पड़ता है, ऐसे बोल के reasoning ability नहीं improve होती। We have to work on reasoning type of questions type। तो हम लोग जैसे हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे भी होते हैं, क्लरिकल बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। आप अब्रॉड के एग्जाम एसएटी वगैरह लिखते हैं, उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो उस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस पे ये students should start working when they are in grade 9 10th, so that by the time they are in grade 11 and 12 they are well adjusted, and in rather entering for any entrance exam, not only for designing and architecture, for any entrance exam they are ready for the assessing themselves at the for the reasoning test। so वही मैं बता रही थी, जैसे एक हॉस्पिटल का प्रेमिसेस बताया मैंने, अभी बात करते करते एग्जाम्पल निकला मेरे। तो आप रीजन करेंगे कि अगर मैंने इसका इंटीरियर डिजाइन किया है तो उसके एंट्रेंस करने के लिए उसके अंदर वो स्पेस है, कोई पेशेंट आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर के साथ किसी को लेके आ रहे हैं या व्हील चेयर के साथ लेके आ रहे हैं, तो क्या मैंने वो स्पेस दिया वहां पे? क्या मेरा कॉरिडोर का साइज उतना है कि आप पेशेंट को लेके मूव कर सकते हैं? पता चला कॉरिडोर का साइज इतना छोटा है कि पेशेंट को खड़े होकर कुछ आके चलने के कंडीशन में भी नहीं है, उसको चलना पड़े। तो इट्स एक्चुअली द रीजनिंग इज इन्वॉल्व एवरीवेयर, वेयर द डिजाइन, फैशन डिजाइन में भी अगर आप ले लो तो फैशन डिजाइन में भी कोई यदि आपने क्लोथिंग पहनी है तो उस क्लोथिंग की भी रीजन होनी चाहिए। व्हाइट क्यों पहन रहे हैं समर में हम? क्योंकि सूदिंग होता है, हीट ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता, तो उसका भी रीजन है, उसमें कोई मैथ्स नहीं है, तो उसमें रीजनिंग चाहिए आपको। और आपने लाइट कलर, लेमन कलर, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर समर में पहनते हो, इट्स सूदिंग, इट्स डजंट ऑब्जर्व द हीट। डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए समर में। तो हर चीज का रीजन है जो कि आर्टिस्ट they should have that ability, and that comes with the time, with practice, those type of questions, and solve those type of problems, try and find out everything reasonably, so you get to know that yeah, you have to work on the reasoning ability। Very well said, Sangeeta ji, जो अभी आपने बोला। Yeah, so Sangeeta ji, very well said what you have mentioned। रीजनिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एक स्पेशल अवेयरनेस, एक जो पर्टिकुलर फीचर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज के लिए हमें ये देखना है कि कितने what is the parameter where people can actually design the layout of the thing, may it be a clothing, fashion designing, may it be a watch designing, may it be a interior designing or anything. We need to ensure that the things are laid out in a proper manner so that the seamless transactions can take place. Also, it can look little more spacious. So that was, you said the real context of that why designing needs the reasoning. अभी मैम एक ना नया नया एग्जाम्पल आया है, या जो सर्कुलर आजकल चल रहा है नाटा का और एनईएफटी का, निफ्ट का, कुछ एग्जाम प्रोसेस में चेंज हुआ है। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वाचिंग अस who are actually planning to give NATA exam which was scheduled, but again revamping या कुछ हो रहा है इसके अंदर। So if you can share something about the NATA, then we will go to the design career। Yeah, sure। So this year students who are planning to approach this year exam giving, which is in the August 29th August, अगर तो नाटा के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। whatever you have learned and prepared for entering the NATA entrance exam, it's coming from that particular sort of curriculum only, because it's online exam now and it's in 2 patterns now। if you are not aware of it, I should tell you कि अभी 2 पैटर्न में होगा ये एग्जाम। one will be online, which when you are sitting at residence and giving it, that will be in morning session, and the second session जो होगा after post lunch होगा, that will be in the center, preferred center। so if you have applied for it, you should make sure that if you are interested in online writing exam, then you should select that। if you are preferring the center में जाके exam देने का, then you should prefer the center option। so what is the difference between it now? जब आप सेंटर में जा रहे हैं तो सेंटर में they will allow you to use the, they will assign you the, क्योंकि रीजनिंग, वही रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस यदि आते हैं तो you will be allowed to use the paper to solve it, because examiner, invigilator is there to monitor you। but when you are sitting at your residence and you are doing it, so there is a proctor who is been assigned on every 12 student who will be monitoring you, that when you are writing your exam, so you have to be there 30 minutes before the exam, you have to be on your seat with all your documents ready, because
every 12 students there is a proctor, and he or she will check all your original documents then and there on this screen, that your documents are verified. When your documents are verified, then only you're allowed to start your exam. And you have to make sure this exam has totally different pattern. And yes, a little bit fear is there in every student. I have also, guided this to my our own center students also, that they should not be scared of this. But yes, you have to be very careful because it's time based now, and every question is assigned time. So if a certain question has been given 4 minutes to solve that question, that the screen will jump into next screen if you are not able to appear that question in certain time limit. So if that question is being given 4 minutes to do that, you have to finish in 3.5 minutes, so that you are able to appear for the next question. If not, that you will not able to do that question again, because you cannot go back. That is the format of the exam. You cannot go back to that question. So you have to be very careful when you are writing that exam, that you have to finish half minute before that question has been assigned. ठीक है, एक तो चेंज ये है that you have to be very careful. मैं टाइम का बहुत ध्यान रखना है. आपके पास 1 महीना है, आप प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस पे. उसमें पीसीएम का क्वेश्चंस आया है 15 मार्क्स का, उस घबराने की जरूरत नहीं है. 11-12 के में जो आपने पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन आएगा. जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आर्किटेक्चर के बच्चों को आना चाहिए, कि आर्किटेक्चर में अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, एग्जाम्पल अगर आपको सी कॉर्नर में बनानी है कोई बिल्डिंग, तो सी कॉर्नर के पास अगर आपको पार्क बनाना है, इज इट एडवाइजेबल टू मेक ए पार्क, चिल्ड्रन पार्क अराउंड नियर बाय दी सी कॉर्नर? आपको खुद ही समझना चाहिए कि पार्क के साथ बम्पी बहुत वेट एरिया होगा उसके पास, सी के पास, तो ऐसे चीजें नहीं बना सकते. तो एक फिजिक्स जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स होती है वो आनी चाहिए आपको, कि सी यदि कॉर्नर है तो सी के पास कोई बड़ी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, या फैक्ट्री टाइप का ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग हो, जहाँ पे कि बच्चों की लाइफ ना इन्वॉल्व हो. तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पर कि जो वो सरवाइव कर सके उस एरिया में. तो जो एक जनरल आपका जो एबिलिटी क्वेश्चंस होती हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए आर्किटेक्चर लेवल पे आपको, उसी टाइप की आएगी जो आपने 11th-12th में पढ़ी है. ठीक है. दूसरा एक ऑप्शन है, उसके अंदर आया है प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन, PTQ क्वेश्चंस. ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि ये PTQ क्वेश्चंस क्या है. ये PTQ क्वेश्चंस है, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस है. इसमें आपको एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है 17 मार्क्स का, जो कि 12 मिनट्स दिया जाएगा जिसको करने के लिए आपको. फिर एक सेकेंड PTQ क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 16 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, उसमें भी 12 मिनट्स दिए जाएंगे. सो एंड थर्ड पार्ट होगा MCQ क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मिनट्स ईच. तो इन PTQ क्वेश्चंस में क्या आएगा, ये क्वेश्चन है सबका. PTQ क्वेश्चंस में ऐसा भी देखो, क्वेश्चन पेपर तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि कैसा आएगा, बट वी आर गेसिंग एज एन आवर एक्सपर्ट्स, आवर जो फैकल्टीज एक्सपर्ट्स हैं, दैट दोज हु आर इन दिस ट्रेनिंग ऑफ द नाटा प्रिपरेशंस, दे हैव गेस्ड कि मे बी कोई एक मॉन्यूमेंट दिखा दिया, या कोई एक आपको पिक्चर दिखाया, 2D 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस दिखाए, और उसमें बोला कि इसके आंसर जो है आपको एग्जांपल 10 आंसर्स दिए. So which are the closest answer? Maybe it can be possible that all the answers are correct, but which are the closest answer? So you have to answer accordingly closest. If the 9th number is the closest answer, you will take 9th as in first number, then 7th as in second number, 4th as in third number. So closest answer should be there. So yes, you have to hurry up to make sure that you are giving the closest answer of that question. So ये है एक ऑप्शन जो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे. एग्जाम के बाद संगीता जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि नाटा एग्जाम में 3 तरह के चेंजेस किए गए हैं, एक तो डेट का, एक पैटर्न का, और थर्ड हुआ है मेरे ख्याल से जहाँ पे उन्होंने चेंज किया है कि जहाँ से वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें, सिलेबस का. तो अब ये बताइए आप, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है? सिलेबस में एक 15 मार्क्स का पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस वो चेंज हुआ है सिलेबस में. ठीक है. और सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है. 15 मार्क्स के एडिशनल जो क्वेश्चंस आए हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐड हुए हैं, बस ये चेंजेस आए हैं. बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन चेंज हुआ है. और एक क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि ड्राइंग का टेस्ट होता
अब ड्राइंग का टेस्ट नहीं होगा, ड्राइंग के टेस्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितनी भी आपने ड्राइंग प्रैक्टिस की है, उस ड्राइंग के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू नो योर एबिलिटी टू बी रेडी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, फॉर द आर्किटेक्चर एग्जाम, दैट व्हाट यू हैव लर्न। एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग में अगर ईगल आई के व्यू से अगर कोई बिल्डिंग देखी जाती है, तो इस बिल्डिंग का व्यू किस तरीके का लगेगा, तो उसमें उसकी जो क्लोजेस्ट आंसर होंगे आपको वो क्लोजेस्ट आंसर देने हैं, क्योंकि सबका देखने का व्यू अलग होता है, कोई इस कॉर्नर से देख रहा है। ये भी तो होता है कि जैसे Sangeeta ji, if I'm not wrong, since my son was preparing for नाटा और इसका, तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप एक चीटी हो और आपके सामने एक ग्लास रखा है, तो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है? तो वो जो क्वेश्चंस हैं, अब आप ये कह रहे हो, now you don't need to draw anything, all you have to do is that you are an ant and you are seeing a glass in front of you, तो आपको कैसे दिखेगा, आपके वो ऑप्शंस आएंगे। Again, this would be an objective questions, right? Objective questions, yes. परफेक्ट। एंड आप कह रहे हैं इसके अलावा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, जो एडिशनल 15 उन्होंने ऐड किए हैं। हाँ, 15 मार्क्स के। हाँ जी, ठीक है। और सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, 29 अगस्त को ये एग्जाम हो रहा है। So all the people who are watching us, or all the people who are aspiring to give NATA on 29th of August, there are 3 changes which have been done. One is in the curriculum, wherein पहले आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, अब वो पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका ड्राइंग का जो टेस्ट होता था, जो कि एज यू नो नाटा के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो नॉर्मल एग्जाम है उसका 50% स्कोर होता है और ड्राइंग का 50% स्कोर होता है। So the scoring remains unchanged. However, the pattern has changed. In the pattern, you have, how you will view the things. Like आप eagle हैं, तो अगर आप ऊपर बैठे हैं, तो आपको जमीन कैसे दिख रही है, ठीक है? ये सब चीजें जो है क्वेश्चंस आपको व्यूअर बेसिस में आएंगे। सो संगीता जी, अभी एक ये है कि आज तक जो ना बच्चों ने पढ़ा है ना, वो पुराने पैटर्न से पढ़ा है। अब ये नया पैटर्न इज नॉट कम विद एनी मैनुअल। सो व्हाट शुड स्टूडेंट डू राइट नाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि 29th को है and today we are on 8th or 7th, I believe, yes. So हम कैसे इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? बच्चे क्या ध्यान रखें, अगर आप थोड़ा सा बता सकें इस बारे में। बच्चों को कुछ नहीं, जैसे कि आपके जो ये क्वेश्चंस हैं आर्किटेक्चर के, जितने भी क्वेश्चन है, सिर्फ डिजाइन पे जब फोकस किया था बच्चों ने, पहले भी बच्चों को यही बताते थे कि आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ ड्राइंग नहीं ड्रॉ करना होता, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे। रीजन बिहाइंड यू आर नॉट डूइंग राइटिंग टेस्ट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, this pattern has been changed. It's not been changed forever. Because of this situation, today's scenario, this pattern has been changed, or maybe next year it will come back to the same pattern. And इसका जो नाटा का second attempt है, ये सितंबर में होगा, towards the 3rd week of September. So date is yet not been released. There are 2 attempts always been there for the NATA exam, which is now first attempt is on 29th August and second will be in September, towards the September end. So date is yet not been released. So soon it will release on COA website. Okay. Now one more thing, Sangeeta ji, people who have filled up the NATA form, तो पहले एक आपका हो रहा था 19th अप्रैल को मेरे ख्याल से, और दूसरा हो रहा था 31st मई को। That was in the normal scenario जो आपके एग्जाम हो रहे हैं। Now people who have filled up the form and they have opted for say first option and they would like to switch over to the second option now, जो सितंबर की प्रिपरेशन के लिए, या जिन्होंने May 31st का डाला था, that is as a second attempt, but right now they want to switch over to the first attempt, जो फर्स्ट आपका है, तो क्या ये चेंजेस हो सकते हैं? Yes, आपको स्विच ओवर नहीं करना, आपको दोबारा से फिल करना है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी फिल कर सकते हैं और सेकंड अटेम्प्ट का जैसे ही फॉर्म ऑप्शन खुलेगा तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी फिल कर सकते हैं। और सबको पता होगा ये तो उनके लिए ना जिन्होंने अपना ऑलरेडी फॉर्म भर के पैसे भर दिए हैं, जो नाटा का आपका एंट्रेंस एग्जाम का फी होता है 2000, एडिट करने के लिए ऑप्शन खुल रहा है। एडिट के लिए यू कैन एडिट द फॉर्म, जिन्होंने भरा हुआ है ना ऑलरेडी, they can have addition, they can do the addition and the change the even the preferences of the exam, whether they are planning for online or they are planning for the offline. So students who are watching us right now who have actually opted for the NATA exam, आपको एडिट का ऑप्शन मिलने वाला है। वो जैसे आपने पहले जैसे करा हुआ है COA के वेबसाइट में, उसी वेबसाइट में होगा शायद चेंजेस, और आपको सिर्फ अपने आप को अलर्ट रखना है कि क्या चेंजेस हुए हैं। As Sangeeta has already shared that there are 3 changes which have happened right now,
और सबसे बड़ी चीज जो आपके ड्राइंग का है, एज यू नो द वेटेज ऑफ ड्राइंग एंड द अदर टेस्ट इज इक्वलेंट, और दोनों में आपको 50-50% लेके आना बहुत जरूरी है। सो आपको क्या करना है, आप अब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अब ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको गूगल या किसी में नहीं मिलेंगे, बट यू कैन टेक क्रैश कोर्स इफ there are companies who are providing that. Otherwise you can actually appear for architectural aptitude test, which is आपको फॉर्मर जो आपके क्वेश्चंस होते थे, अगर आप आईआईटी मेंस को क्रैक करते हैं और आईआईटी में ही आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो एआईटी आपको देना पड़ता है, आप वो क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई संगीता जी आर्किटेक्चर के बारे में। लेकिन अब एक आर्किटेक्चर के बारे में क्लोज करने से पहले और डिजाइन स्टार्ट जाने के पहले हम ये एक बार आपसे पूछना चाहते हैं, आर्किटेक्चर का अब कैसा स्कोप है पोस्ट कोविड? सी पोस्ट कोविड से आर्किटेक्चर का रादर मैंने जो आज ही सुना, लेटेस्ट सुना है मैंने कि प्रॉपर्टी जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से प्रॉपर्टी थोड़ा सा पीछे 2015 से प्रॉपर्टी डाउन हो गया था। रादर मैंने आज सुबह ही सुना ये चीज कि प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बूम नाउ बिकॉज प्रॉपर्टी हैज रादर पिछले 6 महीने में जो प्रॉपर्टी का काम रुक गया था उस वजह से थोड़ा सा होल्ड आ गया था। तो architecture is purely property business, whether it's school property, it's hospital property, it's hotel, it's residential, it's airport, it's a dam, it's government institutions, anything. If we are making roads, highways, airports, so anything we are making, यदि काम रुक गया था तो we have to make it, we cannot stop it. So yes, the architecture career cannot be stopped because of this situation, because जो चीज लोगों ने रहना है तो रहना ही है, रेजिडेंशियल चाहिए तो चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो गया था कोविड की वजह से और डीमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था अब, लेकिन वो डीमोनेटाइजेशन वाला जो टाइम है वो रिवाइव हो गया है। तो अब जो थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा सा डल हुआ था अब वो रिवाइव होना फिर से शुरू हो गया है। तो जो आर्किटेक्चर करना चाहता है वो बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो, क्योंकि आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्चर they will be always in demand, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पे कोई ताला नहीं लग सकता, उस पे कोई रोक नहीं, कोई कोविड के रोक नहीं लगा सकता। आप प्रीमिसेस में आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी इमेजिन कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिव आइडियाज आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, और यू कैन प्लान एनीथिंग सिटिंग एनीवेयर। आप पेड़ के नीचे बैठ के भी कुछ आप डिजाइन फॉर्म कर सकते हैं, आप स्विमिंग पूल के आगे बैठ के भी आप कुछ सोच सकते हैं। तो उसके लिए आप आर्किटेक्चर में कैन नॉट स्टॉप, बिकॉज रादर जितना भी अभी मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा जो काम रुक गए थे पीछे भी बहुत ही स्पीड से चालू हो गए हैं। तो इसका मतलब पीपल दैट हु आर इन आर्किटेक्ट फील्ड दे आर वर्किंग, चाहे बीच में 2-3 महीने 4 महीने की वजह से कोविड की वजह से फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट प्लानिंग एंड एलिवेशन इन सब चीजों पे तो काम चल ही रहा था, वो रोक ही नहीं सकते थे, वो रुक ही नहीं सकता क्योंकि क्रिएटिविटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यू कैन नॉट स्टॉप। Exactly, as you rightly said, artist and writer, in fact, या poet, ये कभी भी बोर नहीं हो सकते क्योंकि इनको थोड़ी सी भी समय मिलता है तो वो उसी तरफ ध्यान चला जाता है। Obviously, where the attention goes, the energy flows. Well, just for the students, एक मैं पढ़ रही थी कहीं पे आर्किटेक्चर का, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो होंगे आपके क्राइसिस आर्किटेक्चर के ऊपर होंगे या आपके होंगे इमरजेंसी आर्किटेक्चर पे। दैट मीन्स बोथ ऑफ देम, इमरजेंसी आर्किटेक्चर एंड क्राइसिस आर्किटेक्चर would be at the center stage. So that means जो आपके कैंप्स, जो भी आपके adaptive reuse approaches हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे। So might be that the new curriculum, as you all know कि national education policy roll out हो चुका है, new education policy में हम interdisciplinary approach की बात कर रहे हैं। So by the time if you are cracking NATA this time and you're getting admission into the architecture college, most likely in the 3rd year you will have the change of syllabus और द करिकुलम, बिकॉज अभी ये कोविड ने एक चीज सिखा दिया है जो कि हम लोग कभी प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट वेल थैंक्स टू दिस लॉकडाउन, थैंक्स टू ऑल द पॉलिसीज दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड हियर, नाउ वी नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट द वुका वर्ल्ड। हम हमेशा पहले बोलते थे वुका वर्ल्ड आ रहा है, वुका वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन अब आ चुका है और हम देख रहे हैं दैट इज वोलेटाइल, एम्बिगस, अनसर्टन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है हमारा वो आ चुका है। एंड यू गाइस आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव सीन बोथ द एरास, you are going to create the history. So people who are planning to pursue architecture, as Sangeeta has said, the career and the scope is not deteriorating, neither it is downgrading. In fact, real estate का दाम बढ़ेगा क्योंकि बहुत लोग बहुत hit कर चुके हैं, and people now whosoever have stopped taking a decision about the real estate, they would actually rethink about it.
and the policies are going to change. There would be a boom in the market, so there is no absolutely no question कि आर्किटेक्चर का करियर कैसे जाने वाला है। मैम अब हमने इतनी बात आर्किटेक्चर की कर ली है, थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर डिजाइनर के क्या स्कोप होता है, एंड क्या एक आर्किटेक्ट को इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी एज अ डिप्लोमा कर लेना चाहिए? और दूसरा, जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता, आर्किटेक्ट के पीपल जो कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उनको सीखने चाहिए? ऑटोकैड एक चीज है, माया एक चीज है, बट स्टिल यू आर द एक्सपर्ट, इफ यू कैन शेयर समथिंग। सी अलग से इंटीरियर डिजाइनिंग आई वुड सजेस्ट, मैं वैसा जैसे कई कई बच्चे आते हैं, स्पेशली फीमेल्स आती हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं कि मुझे सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। देखो, इफ यू आर डूइंग सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, मैं मानती हूँ सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग यू वांट टू डू सिर्फ ओनली इंटीरियर डिजाइनिंग, बट इफ यू हैव पीसीएम इन योर 11th 12th as per COA curriculum, COA instructions, that you should have PCM in 11th 12th। अभी तक तो यही है, आगे न्यू पॉलिसी के हिसाब से अगर चेंज हो गया तो you will be the lucky one that if PCM is not been restricted, that PCM should be there, then you will be the best and lucky ones, but till now अभी तो PCM है, तो अगर आप PCM है आपके पास तो you should go for the architecture which will include the interior designing ability। आपके आर्किटेक्चर करते ही इंटीरियर डिजाइन आपको उसी में सिखाया जाएगा। So as if you will ask me sincere advice, you should do the architecture where you will be, we will be taught for the interior designing also। खाली इंडिविजुअल इंटीरियर डिजाइनिंग भी आपने करना है तो आप कर सकते हो, बट जो डिमांड ज्यादा होती है वो आर्किटेक्ट प्लस इंटीरियर डिजाइनर की होती है, क्योंकि आजकल जो मल्टी टैलेंटेड लोग ढूंढे जाते हैं, अच्छी कंपनी जो होती हैं वो आपको एक सीमित दायरे में नहीं रखना चाहती। कहते हैं कि आपको कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट के साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट में भी यदि आपने अपने आइडियाज शेयर किए, सो यू आर हाईलाइटेड देयर बिकॉज यू हैव ability to do two things at one time, so you will be highly in demand if you have both the ability। but आप खाली इंटीरियर डिजाइन करते हो तो you are limiting your scopes, that is all what I want to say, कि only interior designing you are limiting your scopes for the interior designing। if you are doing interior designing which is with the architecture, you will be more privileged to do well in it nationally and internationally। Just for information, people who will pursue the architecture, obviously आपको एक license मिलेगा। That means अगर आप government bodies को join करते हैं as a contractual thing or as an honorary thing, then every signature will pay you। So that's the beauty of this profession। Architecture, जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, yes, तो जैसे डॉक्टर अपने नाम के आगे DR लिखते हैं, आके इंजीनियर अपने नाम के आगे ER लिखते हैं, या CA अपने आगे CA लिखते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट अपने आगे AR लिख के आर्किटेक्ट लिखते हैं। दैट इज अगेन अ थिंग, दैट इज अ प्रिविलेज दैट यू आर गेटिंग, बिकॉज नन ऑफ अस लाइक वी एज अ काउंसलर, हम अपने आगे मिसेस या मिस, इसके अलावा कोई और चीज हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, बट यू हैव मिस्टर के अलावा या मिस के अलावा आपके पास आर्किटेक्ट लिखने का एक स्कोप बनता है। सो वेरी वेल सेड संगीता जी, जो आपने कहा इंटीरियर डिजाइनिंग का अकेला कोर्स मत करो, आर्किटेक्ट के साथ करोगे तो उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द डिजाइन करियर्स। डिजाइन करियर्स के लिए एप्टीट्यूड क्या जरूरी होता है? डिजाइन के लिए, क्योंकि अब एक सर्टेन एग्जाम फॉर्मेट है हमारा एंट्रेंस के लिए, और वही चीज मैं दोबारा बोलूंगी कि रीजनिंग एबिलिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी चीज की सोल्यूशन निकालोगे तो आप पहले रीजन करोगे इसको कि हमें ये क्यों करना है। कोई रीजन होगा तभी हम उसका सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें रीजन चाहिए, देन ओनली वी विल एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। So that is why ability is needed, reasoning ability is needed। that is why entrance exam में आपकी reasoning ability, जिस is logical reasoning, analytic reasoning, आप analyze कैसे करते हैं किसी चीज को, logically analyze करते हैं या illogically, तो logical reasoning, analytic reasoning and quantitative reasoning ability जो है वो आपको चाहिए होती है, so that you can be refined designer। ऐसा नहीं कि आपने बैठ के कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कुछ भी जिसका कि कोई अता पता ही ना हो। तो इसीलिए रीजनिंग एबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी भी डिजाइन को आप रीजन करके बना रहे हैं, कोई चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं आप, चाहे वो आप एसएससी डिजाइन, एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप स्विच बोर्ड देख लो, आपके पीछे स्विच बोर्ड है, वॉल पे लगा हुआ है, एक एसएससी डिजाइन ने पीछे अभी लास्ट ईयर एक हमारा एक इंस्टीट्यूट है, मतलब जानती हूँ मैं इंस्टीट्यूट को, IID है, उसमें एक स्टूडेंट गया था, अब उसने एक मल्टीपर्पज एक्सटेंशन बोर्ड बनाया, छोटा सा। एक्सटेंशन बोर्ड तो बहुत बने हैं, लंबे वायर वाले बने हैं, सब कुछ। उसने एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड बनाया, वेर यू प्रेस द बटन इट विल कम अप विद द मल्टीपल सेक्शंस,
press the button, come up. So it's space consuming. If you don't want multiple sections, you just press the button, it will go inside. Press the button, go outside, and you top front ये सब जगह आप कर सकते हो उसको चार्ज. तो ये एक छोटा सा है. एक्सटेंशन बोर्ड की बात मैंने बोली, बट इट्स ए प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड इट्स बीन डिजाइन विद द रीजन कि स्पेस आपका ज्यादा नहीं लगेगा, आपकी वायर ज्यादा नहीं लगेगी, आपको लंबा एक्सटेंशन राउंड एक्सटेंशन बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा अलग से. वॉल के अंदर ही वो छोटा सा फिक्स हो जाएगा जिसमें कि आपका मल्टीपर्पज यूज हो जाएगा. सो रीजन इट वाज बीन रीजन एंड इट वाज बीन डिजाइन. तो एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने. तो इसीलिए रीजनिंग एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस फॉर टू बी अ डिजाइनर. And yes, it is available in all the entrance exams, so that is also why it has to be there. Perfect, ma'am. So what you are saying right now is कि even मतलब आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि एक हमारा एक्सटेंशन कॉर्ड भी इस ढंग से बना हुआ है, which would actually be very modular on that. In fact, जो modular switches, modular fans, modular आपके जितने भी electrical things बन रहे हैं, that is something which is an outcome of the people who are doing the product designing. So, मैम एक बात बताइए, जैसे नाटा का एग्जाम होता है इसके लिए आर्किटेक्चर के लिए, या IIT JEE का आपका जो एग्जाम होता है, ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं जो लेते हैं और कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये इंटीरियर डिजाइनिंग का ऐसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो इंटीरियर डिजाइन है. NID है जो कि फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. IIT है, IIT नाम सबने सुना ही होगा. IIT विच वेयर दे गिव बैचलर डिग्री का कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं जिसको. तो इंटीरियर डिजाइन इज ए ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन देयर. सो यस, डेफिनेटली बी डिजाइन करियर इफ यू आर गोइंग फॉर IIT. सो यू विल गेट इंटीरियर डिजाइन का बैचलर इन डिजाइन डिग्री फॉर 4 years फ्रॉम IIT. एंड NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, उससे भी आपको इंटीरियर डिजाइन का आपको 4 years का बैचलर डिग्री मिलता है, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन. A few premium some private colleges are there, like IIAD hai, ISDI hai, UID hai, Pearl hai. Good colleges are there, UPES hai. So they are premium colleges, and they give you the project based learning, and you learn on the projects directly, which is being given by the industry to these colleges, so that students can work on them and they can have the hand on practice. So yes, interior design is also again a good career, and these premium colleges are offering direct interior designing degrees. Okay, so मैम एक तो आपने IIT का बोला, एक UCET भी होता है ना कुछ डिजाइन का? So ये UCET is the name of the exam. When you write this exam, UCET का full form होता है Undergrad Common Entrance Exam for Designing. So if you give this exam, you qualify, you get the good ranking. With this ranking, you are able to enter into IIT for bachelor design program, which is for 4 year degree program. So you have to appear for the UCET exam, is the name of the exam. Okay, so you have to qualify this exam, get the ranking, क्योंकि उसके अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, 144 सीट्स हैं अंडरग्रेड लेवल के जैसे. तो आपको रैंकिंग उसी के अंदर लानी पड़ेगी टू बी appearing for the bachelor degree for the IIT for the bachelor degree program. That is for 4 years. ओके, सो आप ये कह रहे हो कि ये 4 years का कोर्स है. इसके अलावा मैम बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं मेरे ख्याल से. इफ यू कैन शेयर सम डिटेल. IIT में नहीं है, IIT में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए नहीं होता ऐसे. डिप्लोमा कोर्सेज निफ्ट में है, निफ्ट में डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे फैशन डिजाइन का डिप्लोमा कोर्स है, इंटीरियर डिजाइन का कोर्स है, निफ्ट में है 1 year का डिप्लोमा प्रोग्राम. For that also the eligibility criteria is 12th pass or 12th pursuing. When you are 12th pursuing, you can apply for it, and eligibility criteria is 10+2. Till now it's 10+2. Before this new education policy has been launched and it's not implemented yet. So after this, maybe next year change हो जाएगा. अभी तक तो यही है कि you should have the 10+2 eligibility criteria for the applying for the diploma courses in NIFT. NID and IIT में diploma courses नहीं है, degree programs हैं. Do we have any sector skill council also which is handling the architecture and the interior design का कोई skill sector भी है जो काम कर रहा है मैम? Sorry, I have not understood your question. मैम जैसे आप जानते हैं NSDC का जो स्किल सेक्टर है, क्या वो भी कुछ है जो आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग के कोर्सेज के लिए कुछ कर रहा हो, या सिर्फ हमारा नाटा या जो IIT के थ्रू में या डिजाइन इंस्टीट्यूट? डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट भी हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जैसे JEE है, जैसे आप रुड़की एंड खड़गपुर ही डायरेक्टली, इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर JEE2,
JEE2 is also, there is exam for the architecture which is JEE2 exam. So I want to tell you this thing also कि उसके भी एग्जाम 2 सितंबर को है. Those who have not applied for this, you should apply for it. 2 सितंबर में का एग्जाम डेट है JEE2 का. सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है JEE2 भी आप 2 बार दे सकते हैं, विच इज फॉर आर्किटेक्चर. BArch 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है ऑलवेज, 4 ईयर डिग्री नहीं होता, ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है. एंड JEE2 का एग्जाम आप देके आप जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं जैसे स्कूल प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्चर्स, NITs, ऐसे कॉलेजेस में आप जा सकते हैं विद गुड परसेंटाइल. व्हेन यू हैव लाइक यू शुड हैव जे, आपको पता है कि जे के एग्जाम की जो रैंकिंग और कट ऑफ स्कोर होती है ये हमेशा हाई जाती है. तो एटलीस्ट यू शुड हैव 97 एंड अबव, 98 एंड अबव परसेंटाइल होना चाहिए, जिससे कि आप SPAs एंड NITs में जा सकते हैं विद फॉर द आर्किटेक्चर प्रोग्राम. एंड काफी कॉलेजेस हैं, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है बॉम्बे में, कर्नाटक के 100 कॉलेज हैं दैट, but they all are under guidelines of COA, Council of Architecture. So any college, even if it is semi-government, government or private college, they are following the guidelines and the rules which is being made by COA, Council of Architecture. So that's thank you so much संगीता जी, आपने बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ चीज दी. हमने वो बात नहीं क्या आर्किटेक्चर से क्या करियर हो सकता है, क्रिएटिव करियर. इन द एक्सपर्ट चैट हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आपको एक एक्सपर्ट से रूबरू कराएं जिसके अंदर आप उनसे बात कर सकें, उनसे सारे क्वेश्चंस को ले सकें कि भाई आप आर्किटेक्चर के लिए क्या कर सकते हैं. अब ये एक स्टूडेंट है समर महापात्रा, ये कटक से है और उन्होंने बोला है कि मैम मैंने ह्यूमैनिटीज ले रखा है लेकिन मेरे पास आर्ट्स नहीं है, तो मैं अगर आर्किटेक्चर करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे आप आर्किटेक्चर तो नहीं कर सकते समर, आई एम वेरी सॉरी. If you would have asked me this when you have qualified 10th, I would have suggested you to go with the PCM. But yes, आप इंटीरियर डिजाइनिंग के थ्रू आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर लो, जिससे कि आप प्रोडक्ट डिजाइन करो, आप IIT में अप्लाई करो, UCD एग्जाम दो और IIT में अप्लाई करो इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए. ठीक है, विद दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन एबिलिटी यू कैन गो टू द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री. आप इंडस्ट्रियल डिजाइन अगर आप करोगे तो उसके अंदर सेक्शन आता है इंटीरियर डिजाइनिंग का, सेरेमिक डिजाइन आता है, प्रोडक्ट डिजाइन आता है. सो वंस यू हैव डन इंडस्ट्रियल डिजाइन, आप जाके तो इंडस्ट्री में डिजाइनिंग कर सकते हो. तो आर्किटेक्चर जरूरी नहीं कि PCM करके ही आप करोगे, आपने मिस कर दिया चांस, ऐसा मत सोचो. आप IIT में UCD के थ्रू अप्लाई करो, आप NID में आप फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लो. So it is close to architecture, but yes, you cannot do the architecture as a degree as BArch, but at least you can be in the architect world. आप architecture world में रह सकते हो और आप अपने passion को pursue कर सकते हो if you really wanted to do that. Perfect. मैम ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के ऊपर आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक्चुअली ये कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है या PG कोर्स है, और कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है? इफ यू कैन शेयर दिस, बिकॉज कई बार हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं वो लोग शायद 12th के बाद ग्रेजुएशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. सो व्हाट इज द स्कोप वेयर इन दे आर आस्किंग, कोई ऐसा है 1 year 2 years का कोर्स जो करें और सीधा एम्प्लॉयमेंट में वो लोग जा सकें? से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे एक कॉलेज है, जैसे एक कॉलेज है INIFD, वो जैसे फैशन डिजाइन का कोर्स है, लेकिन उसमें तो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, 2 year प्रोग्राम, 3 year प्रोग्राम, कुछ कॉलेजेस ऑफर करते हैं. जो 4 year नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं तो यही सजेस्ट यही करूंगी कि आप 4 year डिग्री प्रोग्राम करते हैं अगर, तो आपके लिए फ्यूचर के एस्पेक्ट्स जो हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप पूरा फाउंडेशन लेवल से डिग्री लेवल तक पूरा आप इक्विप होते हो नॉलेज एंड स्किल्स के साथ. आप एज एन फॉर्मेलिटी अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा करके आपने पूरी स्किल्स नहीं एक्वायर करी, आपने एक डिप्लोमा करने के सेक में डिप्लोमा किया, तो आपने फिर जब आपने करने के सेक में किया तो फिर आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो आई वुड सजेस्ट कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू गेट all the skills, acquire all the skills for the any course that you are planning for. रही बात प्रोडक्ट डिजाइनिंग की, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में अगर आपको कहीं मिल भी रहा है 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम, आप कर भी लेंगे, लेकिन जो ये जितने एस्टीम कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, NID और IIT जैसे, जो आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग में 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कराते हैं, तो कुछ सोच के ही जो प्रोफेसर्स हैं और जिन्होंने करिकुलम डिजाइन किया है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जिसको प्लान करके कि भी अगर इतने साल में ये इतने प्रोजेक्ट्स और इतने असाइनमेंट्स करने के बाद और इतने प्रैक्टिकल्स करने के बाद और इतने किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद अगर वो इक्विप होते हैं एज ए BA to be a प्रोडक्ट डिजाइनर,
So कुछ सोच के डिजाइन किया होगा कि भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके ही वो एज ए गुड प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकता है, जिसको कि फाउंडेशन बिगिनिंग ऑफ द डिजाइनिंग, थिंकिंग ऑफ द हाउ टू डिजाइन द प्रोडक्ट टिल द फिनिशिंग ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। मैम यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंजीनियरिंग IIT ये सब का ख्वाब होता है, मतलब हम एक कभी नार कविता एक सेमिनार दे रहे थे जहाँ पे हमने बताया कि एवरी ईयर 9,67,000 पीपल दे एक्चुअली अप्लाई फॉर IIT एग्जाम, दैट इज JEE का जो एग्जाम है, और टोटल सीट्स हमारी 13,000 हैं। तो दैट्स वेरी एज कम्पेयर टू लैक्स, यहाँ पे जब हम 13,000 सीट्स की बात करते हैं तो वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग की डिग्री में जाना है, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, तो वो ITI में या वोकेशनल कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि इन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिग्री, जो भी आप सिविल्स में करना चाहें या इसमें मैकेनिकल में करना चाहें, इलेक्ट्रिकल में करना चाहें, आप उसमें जाते हैं। उसके बाद वो लोग जो हैं फिर दोबारा से प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या ऐसे कुछ BVOC के कोर्सेज भी हैं जो कि हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग के लिए काम करते हैं, जो बच्चे देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा कुछ खास नहीं है और वो लोग ये चाहते हैं कि वो तुरंत एम्प्लॉयमेंट में डालें, तो हम उस सेगमेंट के लिए आप क्या बोलेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं? आर्थिक स्थिति से ज्यादा मैं तो ये कहूंगी कि भाई आजकल बच्चों का स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए, आप बताइए। सी जैसे वो प्लान करते हैं, जैसे उनकी आर्टिस्टिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, उनके पास एबिलिटी है, तो दे शुड वर्क ऑन दैट, कोई अच्छी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जिसमें कि वो एबिलिटी को ग्रो करें, टू हेल्प देयर एबिलिटी टू ग्रो। क्योंकि आपने किसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया, एज इन लाइक इंटीरियर डिजाइन की कोई जैसे इंस्टीट्यूट में आपने 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, you are preparing yourself for the industry, then the acquiring the skill एग्जाम। वही मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट डिप्लोमा और 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, बट आप जो भी करें प्लान करके करें और अपने बजट को देख के करें, क्योंकि मैं सभी की नहीं एबिलिटी होती कि आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम अफोर्ड भी कर सकें। इवन द गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका ये जो NID IIT 9-10 लाख के आसपास आपके कोर्स आ जाते हैं, विद इंक्लूडिंग दी हॉस्टल फैसिलिटी एंड ऑल, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो कई ऐसे आते हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए, जब आते हैं तो कहते हैं कि वो तो IIT का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए IIT करती है, और इंजीनियरिंग में जाने के लिए 25-30 लाख वो लोग अपनी जमीन भी बेच के पहुंच जाते हैं, लेकिन डिजाइनिंग करियर की वैल्यू उनको नहीं समझ में आती है भी। जबकि डिजाइनर्स, आप मानेंगे नहीं, जितने भी, मैं ये नहीं कह रही किसी फील्ड को मैं डिमीन करने का मतलब नहीं है मेरा, लेकिन मेरे पास मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, most of the students, they are mechanical engineers, they have done mechanical engineering for undergrad level and then coming back to the designing field to aid their profile with the designing skills. Reason behind, every company is looking for the designers first and then the engineers. If it is automobile company, then they obviously designers first and the engineers. Otherwise हर कंपनी में, चाहे वो कंज्यूमर गुड है, चाहे वो मूवेबल गुड है, चाहे कोई भी नॉन मूवेबल गुड है, सब जगह आपको पहले डिजाइनर चाहिए, उसके बाद आपको दूसरे जो प्रोडक्शन यूनिट है और कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, पहले आपको डिजाइनर ही चाहिए। तो इसलिए अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से स्किल को एक्वायर करें, उसकी इंपॉर्टेंस समझें, डिजाइनर की इंपॉर्टेंस क्या है। If a company is looking for a designer, they are looking for the equipped and skilled designer. ये ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा करके आप एक्सपेक्ट करें कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसा कि आपने नॉलेज से एक्वायर किया है, फिर आपके सीमित दायरे में रह जाएंगे आप। वेरी वेल सेड मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि डिग्री और इसका फर्क पड़ता है, but still those who would like to do the vocational courses, करना चाहते हैं, कोई जैसे कोई अपना कुछ करना चाहते हैं और कुछ लिमिटेड आपने अपने एक्वायर किया और कुछ अपना करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी एबिलिटी को एनहांस किया, और they can have their own entrepreneurship, they can open their own work, then for that case diploma is okay for them. Thank you. Well, those students who have joined us right now, or they will be watching our video when they are scrolling through the Facebook, BVOC के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिटेल मैनेजमेंट, आप फैशन टेक्नोलॉजी, अपरेल डिजाइनिंग में जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हो, थिएटर एंड एक्टिंग में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो, फूड साइंस में जा सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, आपको मालूम है गर्मी का मौसम आता नहीं है, होली जाती नहीं है,
कि लोग जो है रेफ्रिजरेशन और एसी के कंडीशनिंग के लिए कराते हैं, तो एंड यू नो व्हाट, पीपल हु आर कमिंग देयर आर द डिजाइनर्स, नॉट डिजाइनर, वोकेशनल कोर्स होल्डर. कई बार जब बंदा आता है, सिंस वी आर इनटू द करियर काउंसलिंग, वी Yes, आस्क yes. दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन. सो दे आर द काउंसलर, पीपल हु हैव डन द बी वर्क. आपके घर में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा हुआ है, कोई बंदा आ रहा है Yes. आपके ब्रॉडबैंड टेक्निकल है, दे आर द पीपल हु हैव डन द वोकेशनल कोर्सेज एंड दे हैव बीन अब्सॉर्ब्ड. अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो आप. हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, थिएटर एंड एक्टिंग के होते हैं, इनफैक्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए उनके लिए बंदे होते हैं. एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसके लिए बंदे होते हैं. आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हो. सो स्काई इज द लिमिट. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस कहाँ है. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. उनके 37 सेक्टोरल स्किल काउंसिल है, जिसके अंदर एक अपैरल का एक अलग सा सेक्टर है, ठीक है, फुटवेयर का एक अलग सा सेक्टर है. वो लोग हैं जो डिजाइनिंग के आपको 3 साल के कोर्सेज या जो बीवॉक के कोर्सेज को आपको बताते हैं, इवन ब्यूटी वेलनेस का हो गया या कोई भी सेक्टर में हो गया, वो लोग कराते हैं. देन इट लीड्स टू द एम्प्लॉयमेंट. So people who cannot afford or who are looking for a very short term courses, there are options for you. And during this आप अपने आप को अपग्रेड करके ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में कर ही सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ आया है कि आपकी मर्जी है, आप 3 साल का पढ़ो, 4 साल का पढ़ो, 5 साल का पढ़ो. ये लोग अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को लेके आए हैं. फिलहाल वो ग्रेजुएशन के बात कर रहे हैं कि आप 12वीं के बाद सिर्फ 1 साल पढ़ोगे तो यू गेट अ सर्टिफिकेट. इफ यू आर रीडिंग फॉर 2 years then you will get डिप्लोमा. 3rd ईयर तक करोगे तो डिग्री है, 4th ईयर में रिसर्च है. However, आप अगर डिप्लोमा कोर्सेज करते हो तब भी आप डिग्री को परस्यू करने की क्षमता रखते हो. एंड while at work you can earn and you can learn at this moment of time. संगीता जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल है आपसे. अब हमने आर्किटेक्चर की बात की, डिजाइनिंग की बात की, कोविड के बाद कैसे रहेगा वो बात की, कैसे हो सकता है. अब कोई बच्चा अगर बीआरडी, नॉट बीआरडी, कोई नाटा की प्रिपरेशन या डिजाइनिंग की प्रिपरेशन करना चाहे, सिंस यू आर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, क्या बताएंगे आप, ये आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, और जो बंदा ऑनलाइन करना चाहे, जैसे कुछ जगह पे आपके सेंटर्स नहीं है, तो वहां पे कैसे कर सकते हैं. सी हमारे सेंटर्स जो हैं पूरा पैन इंडिया में है. 35 सेंटर्स हैं ऑल ओवर बॉम्बे, पुणे, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर, बंगाल, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर किया हुआ हमने. आप कहीं पे भी जाना चाहें, कहीं पे भी रहते हैं, आप विशाखापट्टनम में भी रहते हैं तो आप कर सकते हैं. तो हमने ऑल ओवर इंडिया है हमारे सेंटर्स. और फिलहाल जो ऐसे एरिया में रहते हैं इंटीरियर्स में, जहाँ जो इन सेंटर्स को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने थ्रू आउट द ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम हमने रखा है. वो हमने इसी साल कोविड के टाइम पे, कोविड ने हमें सिखाया कि हम ऐसे बच्चों तक भी हम अप्रोच पहुंच सकें कि जो बच्चे नहीं भी सेंटर आके सीख सकते हैं, उनको ये कोविड ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उन बच्चों को भी सिखा सकें. तो हमने ये ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है इस साल, अप्रैल में लॉन्च कर दिया था. थ्रू आउट द ईयर इट विल कवर ऑल दी स्टेजेस ऑफ द एग्जाम. चाहे वो आपका स्टेज 1 होता है इसके एग्जाम्स में, स्टेज 2 होता है, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होता है, many things covered under this. So from the beginning till the end, we prepare them for the entrance exams for these colleges, which is NID, NIFT, and IIT and all. So yes, they are welcome to our institute for learning this, and any part of the world even they are staying, they can still learn the, yes, but it will be in the morning till evening only. So they have to, if they are not staying in India, they have to manage their time accordingly. So we are there available for the online courses throughout the year to prepare them for these entrance exams. Thank you so much, Sangeeta ji. You actually covered all the aspects of the architecture and design, whatever the queries that we have received in the due course of the time during the expert panel. Also, we keep on receiving the questions. अगर कुछ भी और questions design और architecture के related आते हैं, या कोई भी ऐसी चीज होगी जो exam के related या pattern के related जो हमें बात करनी है, तो हम आपसे जरूर दोबारा जुड़ेंगे. और इसी के साथ मैं कविता को इनवाइट करना चाहूंगी वापस, who is managing the entire show from the technical aspects, so that she is working with the designers, so everything that things can go on media and everything. So Kavita, all yours now. Thank you, Sangeeta ji, for such an insightful session. I'm sure the students will benefit from the new pattern that has been introduced, and they'll be more confident about it.
and it is something that is not new that is coming to you. You have already studied, nothing to be, afraid of. It's already, the only thing you have to brush up your skill, and it is presented in a different way. What That's the designers do, they present the things in a, very most aesthetic and eloquent way, and these online exams are going to be just part of it. Whatever your core knowledge is there, core competency is needed for being an architecture or for a designer, it's only presented in a different format to you. Be confident, and you will do exceptionally well. And giving an insight with regard to designing and different avenues in designing, those who are not from PCM background, as you have mentioned, I'm sure most of the people would have benefit from it. And IIT dream that people have, even a commerce student or a humanities student, they can take it with UC in designing. If you're a creative, you're energetic, you are passionate about your artistic skills. So definitely these are the options that are available to you, and sky is the limit. With this, I'd like to thank everyone who's watching us, and I'd like to thank Sunanda for facilitating the whole session. And definitely when we sit here and we present to you something, we do a lot of research and we find out the best experts possible, those who have in-depth knowledge of it and can guide you. So with that, I close today's session, and next week we are coming up with a very, very interesting topic, that is careers in defense. And I'm sure the kind of patriotism, the kind of, I would say, the respect and the kind of inner, I would say, upliftment that you feel the moment the defense comes. So all those who are aspiring for being in defense, join us next Saturday, 5 o'clock. We have an expert who will be telling us about different entry points at the defense. So defense, how you can join after 12th, how you can join after graduation, be it Army, Air Force or Navy. Stay tuned with us next Saturday, 5 o'clock. We will be discussing all about defense careers, the entry point, how you have to prepare yourself for it. And with that, I'm signing off for today. Thank you, Sunanda, for facilitating the whole session, and Sangeeta ji for such an insightful session. And I'm sure your inputs will give a lot of confidence to the students who will be appearing next for the exams for NATA. So thank you, everyone. Stay safe and stay healthy. And we wish them good luck. Yes. Thank you so much, Kavita, for wrapping up the things. It was very well wrapped. All the students, एक क्वेश्चन हमारे पास बार बार आ रहा था कि IIT चेन्नई ने कुछ होस्ट किया है, तो हम उसी बारे में आपको बताना चाहते हैं कि IIT चेन्नई ने BSc कोर्सेज प्रोग्रामिंग के लिए और डिप्लोमा के लिए करा हुआ है, और सितंबर इज द लास्ट डेट, और वो 2.5 लाख एप्लीकेशन ही लेंगे. इट्स एन ऑनलाइन कोर्स. एज यू नो, यूजीसी ने अभी भी ग्रांट किया था बिफोर द कोविड-19 कि आप डुअल डिग्री आप ले सकते हो. दिस कैन बी अ सेकंड डिग्री, एंड IIT being a prestigious one, which Sangeeta has spoken, Kavita has spoken, and we have in the due course of time we have spoken. तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग एक बार IIT मद्रास की वेबसाइट पे जाएं और देखिए. Otherwise, Kavita and myself are bringing a video on this, which you can be watching on Facebook as well as on YouTube. Thank you. Thank you. अगले हफ्ते का स्पीकर कौन है? कविता जी, आपने कहा डिफेंस से हैं, तो क्या कोई डिफेंस से हैं बंदे? Yes, he served in defense for some time, and then he's got having a vast experience in the corporate. With a decade of experience, he'll be coming and guiding all the students about the ways option, Mr. Thaya, and all details. Stay tuned on Saturday, 5 o'clock, and we will definitely, be uplifted with the kind of insight he's going to give, and the kind of, you'll be amazed the kind of entry points are there in defense. It's just not NDA. So with that only note, I'm going to leave today's session and catch you to next Saturday, 5 o'clock. Thank you so much. Thank you. Thank you.